Hello students, my name is Kuljeet Kaur. I am lecturer biology in Government Girls Senior Secondary School Kurali, District SS Nagar. Students, we are doing chapter 11, that is transport in plants. In today's lecture, we will study about another two important topics, that is osmosis and imbibition. So let's start. Okay students, in the previous lecture we studied about the passive transport and the active transport. Students, we discussed that the passive transport does not involve any energy. It is just along the concentration gradient from high concentration to low concentration. We discussed about diffusion and facilitated diffusion. Whereas the active transport, it is against the concentration gradient and this process needs energy. Active transport जो है student, it shows uphill transport because in this movement occurs from low concentration to the high concentration. So it is against the concentration gradient and certain protein or the carrier proteins are involved for the transport of the substances across the membrane. In today's lecture, student, we will study about another very important topics, that is osmosis and imbibition. And osmosis is also a special type of diffusion. It is the diffusion of a liquid actually when the solvent moves through a semi-permeable membrane. Students, we have already discussed the structure of plasma membrane or the cell membrane and we discussed that it is semi-permeable in nature. So, in today's class we will study in detail about the osmosis and the second process, that is imbibition, that how the substances जो हैं they absorb the water and they become swollen, they imbibe the water. Actually imbibition is the phenomenon of absorption of water or any other liquid without forming a solution. So we will discuss these two topics today in detail. Okay. First of all, before we start, let's try to understand what is the relationship between the plant and the water. Students, we all know that water is essential for physiological activities. वाटर जो है इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म. वाटर एक मीडियम है जिसके अंदर बहुत सारे सब्सटेंसेस जो हैं वो डिज़ोल्व होते हैं. ठीक है, अगर हम प्रोटोप्लाज्म की बात करते हैं तो प्रोटोप्लाज्म इज़ नथिंग बट इट इज़ वाटर इन विच डिफरेंट मॉलिक्यूल्स आर डिज़ोल्व्ड और सेवरल पार्टिकल्स जो हैं वो उसके अंदर सस्पेंडेड हैं. ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर हम वाटरमेलन देखते हैं स्टूडेंट, वाटरमेलन के पास 92% वाटर है. सी दिस इज सच अ वाटरी फ्रूट. 92% वाटर जो है वो वाटरमेलन के पास होता है. मोस्टली जो हर्बेशियस प्लांट हैं, हर्ब्स जो हैं, दे हैव ओनली अबाउट 10 to 15% ऑफ इट्स फ्रेश वेट एज ड्राई मैटर. ऑफ कोर्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर जो है प्लांट में वेरी करती है. वुडी प्लांट्स जो हैं दे हैव वेरी लिटिल वाटर और सॉफ्ट पार्ट्स जो होते हैं मोस्टली उनमें वाटर होता है. ऐसे ही जैसे आप सीड्स हैं, जितने भी आपके पल्सेस हैं, तो आप उनको अगर देखते हो तो सीड्स आपको ड्राई दिखते हैं बट अदरवाइज उनके पास वाटर होता है. अदरवाइज इट वुड नॉट बी अलाइव एंड रेस्पायर. सीड जो है वो रेस्पायर करता है. आप जब उसको सीड जर्मिनेट करता है तो सीड के अंदर भी वाटर होता है, लेकिन हमें जो देखने में सीड जो हैं वो ड्राई होते हैं बट स्टिल इट हैज़ वाटर. ओके, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स जो हैं दे टेक अप ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर डेली. आप डेली देखते हो, समर्स में आपको देखते हो आपको रोज़ वाटर जो है प्लांट्स को वाटर करना पड़ता है. तो एक्चुअली क्या होता है कि वाटर जो है वो लॉस्ट होता रहता है प्लांट से इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसपिरेशन. व्हाट इज ट्रांसपिरेशन? ट्रांसपिरेशन इज द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स. सो जो भी टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं वो वाटर लेते हैं, उनका रिक्वायरमेंट जो है वाटर का ज़्यादा होता है बिकॉज मोस्ट ऑफ द वाटर जो होता है वो लॉस्ट हो जाता है थ्रू इवेपोरेशन फ्रॉम द लीव्स. इसी तरह से जैसे अगर आप यहाँ पर एग्जाम्पल है, अगर आप कॉर्न प्लांट देखते हैं तो वो एब्जॉर्ब करता है अबाउट 3 लीटर वाटर्स इन ए डेली वो 3 लीटर वाटर जो है वो अपना एब्जॉर्ब करता है. तो आप जस्ट इमेजिन करो कि उसमें रेट ऑफ इवेपोरेशन जो है वो कितना फास्ट होगा. और मस्टर्ड प्लांट जो है इट एब्जॉर्ब वाटर इक्वल टू इट्स ओन वेट इन अबाउट 5 hours. सो ये हम क्या देख रहे हैं? वी आर स्टडिंग द रिलेशनशिप बिटवीन द प्लांट्स एंड द वाटर. बिकॉज वाटर का जो डिमांड है, हाई डिमांड ऑफ द वाटर, इट इज़ नॉट सरप्राइजिंग दैट वाटर इज़ ऑफन द लिमिटिंग फैक्टर for plant growth and productivity both in the agriculture as well as natural environment. Okay students, so before we start our
first topic, that is osmosis. Students, first of all we will study about the permeability. We just discussed the plant and the water relationship. So what is permeability, students? Permeability of membrane. Permeability is the degree of diffusion of gases, लिक्विड एंड डिजॉल्व सब्सटेंसेस थ्रू अ मेम्ब्रेन. तो यहाँ पे जो परमेबिलिटी है कि डिफ्यूजन कैसे हो रहा है गैसेस का, लिक्विड्स का, या डिजॉल्व सब्सटेंसेस कैसे डिफ्यूज़ करेंगे मेम्ब्रेन से, दैट इज़ परमेबिलिटी. सो बेसिकली मेम्ब्रेन्स जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. सो लेट्स स्टडी 3 डिफरेंट टाइप ऑफ मेम्ब्रेन स्टूडेंट्स. फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो इम्पर्मेबल मेम्ब्रेन, दैट इज फर्स्ट टाइप ऑफ मेम्ब्रेन. देन सेकेंड इज द परमेबल मेम्ब्रेन एंड थर्ड इज द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. जो इम्पर्मेबल मेम्ब्रेन है, इम्पर्मेबल मेम्ब्रेन वो मेम्ब्रेन है जो प्रिवेंट करती है डिफ्यूजन ऑफ वाटर एंड सल्यूट्स इनटू द प्रोटोप्लाज्म ऑफ द सेल. वो मेम्ब्रेन जो इम्पर्मेबल है उसमें पोर्स नहीं होते, नो पोर्स, पार्टिकल्स विच कैन पास थ्रू, उसमें से कोई भी पार्टिकल पास नहीं कर सकता. फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारा आपका इसका एग्जाम्पल है जैसे लिग्निफाइड सेल वॉल है, सेकेंडरी सेल वॉल, ये वाटर प्रूफ है तो इसे हम कहते हैं इम्पर्मेबल. ठीक है. सो जैसे क्यूटिकल होता है लीफ के ऊपर, सो ये जो मेम्ब्रेन है ये डिफ्यूज़न को बिल्कुल नहीं होने देती बिकॉज इसमें कोई भी पोर्स नहीं होते. Second है permeable membrane. Permeable membrane has large pores. So permeable membranes allow the free movement of water and the solutes. तो इसमें से जो movement हो रही है inside outside of the cell movement जो है free movement ये allow करेगा. All molecules which normally move through living cells. Example cellulosic cell wall. सो सेल हमारा जो सेल वॉल है दैट इज सेल वॉल इन द प्लांट सेल्स, सो दैट इज परमेबल इन नेचर. सो परमेबल कौन सा मेम्ब्रेन होगा? परमेबल मेम्ब्रेन वो होगा जो फ्री मूवमेंट ऑफ वाटर एंड सल्यूट्स अलाउ करेगा इनटू इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ द सेल. एग्जाम्पल इज सेल वॉल. थर्ड इज द सेमी परमेबल. सेमी परमेबल को हम सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, इसे हम डिफरेंशियली परमेबल भी कहते हैं. सो इस सिलेक्टिवली मीन्स सारे सब्सटेंसेस जो हैं इसमें से ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकते, ये सिलेक्टिव इन एक्शन है. सो ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या होगी? सच मेम्ब्रेन्स जो हैं दे आर सिलेक्टिव इन देयर एक्शन. Right? So such membranes allow the solvent on one side to move freely, but at the same time they resist the movement of the solute particles. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल जैसे सेल मेम्ब्रेन है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या टोनोप्लास्ट मैंने आपको बताया था जो वैक्यूल्स का मेम्ब्रेन है. सो ये क्या है? इनको हम सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन कहते हैं. इनका नेचर सिलेक्टिव होता है इसीलिए इनको डिफरेंशियली परमेबल भी बोलते हैं और इनको सिलेक्टिवली परमेबल भी बोलते हैं. सो दे आर वेरी सिलेक्टिव इन their action. Okay, next slide. So okay, what is osmosis, students? It is a special type of diffusion of a liquid when solvent moves through a semi-permeable membrane from a place of high diffusion pressure to a place of low diffusion pressure. डिफ्यूज़न प्रेशर क्या होता है स्टूडेंट्स? हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि जो टेंडेंसी है डिफरेंट पार्टिकल्स की टू डिफ्यूज़, डिफ्यूज़न प्रेशर इज़ द टेंडेंसी ऑफ डिफरेंट पार्टिकल्स टू डिफ्यूज़, जैसे वो डिफ्यूज़ करते हैं. ठीक है. सो यहाँ पर हम ये डायग्राम देखेंगे. ये हमारे पास एक प्योर सॉल्वेंट है और ये हमारे पास एक सोल्यूशन है. सोल्यूशन क्या है? इसके अंदर जैसे आप देख सकते हो जो आपको ये डार्क ब्लू दिख रहे हैं ये क्या है? सोल्यूट पार्टिकल्स हैं. जब हम कोई भी सॉल्वेंट के अंदर हम सोल्यूट को डिसॉल्व कर देते हैं व्हाट वी गेट अ solution. So this is pure solvent here on the left side and here we on the right hand side we have a solution. ठीक है. सो व्हाट इज ऑस्मोसिस? ऑस्मोसिस जो है वो टेक्स प्लेस थ्रू अ सेमी परमेबल, ये हमारे पास एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है. सो यहाँ पर क्या है? जो वाटर है जहाँ पे हमारा प्योर सॉल्वेंट है यहाँ से वाटर की मूवमेंट हो रही है इस तरफ को फ्रॉम लो टू हाई. ठीक है. सो यहाँ पर जो प्योर सॉल्वेंट होता है स्टूडेंट, जो प्योर वाटर है जिसके अंदर कोई भी सल्यूट डिसॉल्व नहीं होता, उसका क्या होता है? उसका जो डिफ्यूज़न प्रेशर जो होता है वो हाई होता है. सो इट हैज़ हाई डिफ्यूज़न प्रेशर. सो और जब हम सोल्यूशन देखते हैं तो सोल्यूशन में जो डिफ्यूज़न प्रेशर होता है वो लो होता है. सो यहाँ पर हमारा मूवमेंट क्या हो रहा है? वाटर का मूवमेंट आप इस केस में देखो, यहाँ पर वाटर लेवल जो इनिशियली वाटर लेवल यहाँ था, अब क्या हुआ? वाटर लेवल जो है वो राइज हो गया और यहाँ पे वाटर लेवल इधर था, यहाँ से लो हो गया. सो वाटर यहाँ से मूव कर रहा है. सो ये जो मूवमेंट है लिक्विड का थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन फ्रॉम अ प्लेस ऑफ हाई डिफ्यूज़न प्रेशर
to a place of low diffusion pressure, because यहाँ पे diffusion pressure is high because it is pure solvent. ठीक है, यहाँ पर डिफ्यूजन प्रेशर कम है बिकॉज उसके अंदर सोल्यूट जो है वो डिजॉल्व हो गया. सो दिस इज नोन एज ऑस्मोसिस. So let's see the definition once again. It is the special type of diffusion of a liquid when solvent moves through a semi-permeable membrane from a place of high osmotic pressure to a place of low from a place of high diffusion pressure to a place of low diffusion pressure. So high diffusion pressure किसका है? प्योर सॉल्वेंट का है. और लो डिफ्यूजन प्रेशर किसका है? इसमें हमने सोल्यूशन बना दिया, सोल्यूट उसमें हमने डिसॉल्व कर दिया, तो ऑब्वियसली जो डिफ्यूजन प्रेशर होगा उसका वो कम हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट. सो दिस इज़ वन मोर पिक्चर. नाउ इट विल बिकम वेरी क्लियर टू यू स्टूडेंट्स. ये हमारे पास शुगर सोल्यूशन है बट वो डाइल्यूट है, और यहाँ पर जो शुगर सोल्यूशन है वो कॉन्सेंट्रेटेड है. सो ये जो आपको पर्पल दिख रहे हैं ये सोल्यूट पार्टिकल्स हैं. आप देख सकते हो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे सोल्यूट पार्टिकल्स ज़्यादा हैं और राइट साइड पे सोल्यूट पार्टिकल्स जो हैं वो कम हैं. सो आप ये वाइट एरोज देख रहे हो स्टूडेंट्स. ये एरोज क्या इंडिकेट कर रहे हैं? एरोज इंडिकेट कर रहे हैं लो से हाई. सो ठीक है, यहाँ पर सोल्यूट कम है तो यहाँ पे हाई डिफ्यूजन प्रेशर है. सो उसका मूवमेंट कहाँ हो रहा है? हाई डिफ्यूजन प्रेशर से लो डिफ्यूजन प्रेशर की तरफ हो रहा है. तो यहाँ पर आप देखते हो लेवल जो है वो डाउन हो गया और यहाँ पे लेवल जो है वो अप हो गया. सो मोर वाटर इज ड्रॉन इनटू द कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन. सो वाटर कहाँ पे ज़्यादा जा रहा है? कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन की तरफ जा रहा है. सो डिफ्यूजन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अ डाइल्यूट सोल्यूशन to the concentrated solution. So what is the another definition of osmosis? ऑस्मोसिस की एक दूसरी डेफिनेशन भी है. बहुत सिंपली हम इसको कह सकते हैं कि ऑस्मोसिस क्या है? ये डिफ्यूज़न है डाइल्यूट कंसंट्रेशन से कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन की तरफ हो रहा है, लेकिन थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. सो डिफ्यूजन किसके थ्रू होता है? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है एंड फ्रॉम डाइल्यूट कंसंट्रेशन से कॉन्सेंट्रेटेड की तरफ होगा. ठीक है, डाइल्यूट शुगर सोल्यूशन है उससे कहाँ हो रहा है? कॉन्सेंट्रेटेड की तरफ हो रहा है. तो आप यहाँ पर देखते हो यहाँ पे लेवल जो है वो राइज हो गया क्योंकि वाटर की मूवमेंट हो रही है, इस तरफ को वाटर मूव कर रहा है, और ऑब्वियसली यहाँ पर जो लेवल है वो ड्रॉप हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट. ओके स्टूडेंट्स, सो वेरी सिंपल. नाउ लेट्स स्टडी फ्यू पॉइंट्स. यहाँ पे मैंने कुछ डिफरेंसेस लिखे हैं बिटवीन द ऑस्मोसिस एंड द डिफ्यूजन. सो ऑस्मोसिस इट इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट. मैंने अभी बताया स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन है लिक्विड का, सॉल्वेंट मूव करता है इसमें, और इसमें सोल्यूट एंड सॉल्वेंट जो डिफ्यूजन होता है उसमें सॉलिड में भी होता है, लिक्विड्स में भी होता है और गैसेस में भी होता है. इसमें मॉलिक्यूल मूव करते हैं फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सोल्यूट टू द हाई कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूट. जहाँ पे सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन कम है वहाँ से किसकी तरफ मूव करें? जहाँ पे सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है. अभी हमने देखा जो आपका डाइल्यूट शुगर सोल्यूशन था उससे कहाँ पे मूव कर रहे थे? कॉन्सेंट्रेटेड की तरफ मूव कर रहे थे. और जो डिफ्यूजन है इट इज़ फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूट टू द लो कॉन्सेंट्रेशन. तो ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होता है. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ऑस्मोसिस है, इट टेक्स प्लेस थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन विच इज़ सिलेक्टिव इन नेचर. और यहाँ पर कोई भी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो है वो इन्वॉल्व नहीं होती. या ऑस्मोसिस का एग्जांपल है जैसे श्रिंकिंग ऑफ पोटैटो स्लाइसिस व्हेन केप्ट इन द कॉन्सेंट्रेटेड सुक्रोज सोल्यूशन. सो अगर हम पोटैटो स्लाइसिस जो हैं उनको एक कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन के अंदर सुक्रोज या शुगर सोल्यूशन के अंदर डाल देते हैं तो बाहर कॉन्सेंट्रेशन जो है वो बढ़ जाता है. सो मूवमेंट क्या होगी सॉल्वेंट की? अंदर से लो से हाई की तरफ होगी. उससे क्या होगा? जो पोटैटोज जो हैं वो श्रिंक हो जाएंगे, राइट. और डिफ्यूजन हमने देखा था कि अगर हम ग्लास ऑफ वाटर में कोई डाई डालते हैं या इंक डालते हैं तो सारा वाटर जो है वो कलर्ड हो जाता है. दैट इज़ बिकॉज ऑफ द डिफ्यूजन. ओके, नाउ there is a very important term student that is known as water potential. What is water potential? जो water molecules जो होते हैं उनके पास क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी होती है. ठीक है, सो जैसे लिक्विड्स में आप देख सकते हो, यहाँ पे एक डायग्राम देख सकते हो कि सोल्यूट और सॉल्वेंट पार्टिकल्स दिखाए गए हैं. सो ब्लू जो है दे आर वाटर एंड ब्राउन जो है दे आर सोल्यूट. ठीक है, सो अगर लिक्विड में और गैसेस की फॉर्म में देखते हो तो वहाँ पे एक रैंडम मोशन होती है. ग्रेटर द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, जितनी वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी उतना वाटर पोटेंशियल ज़्यादा होगा. ठीक है, जैसे प्योर वाटर है, प्योर वाटर है या उसके अंदर हमने कुछ भी सोल्यूट ऐड नहीं करा तो प्योर वाटर का जो वाटर पोटेंशियल होता है वो मैक्सिमम होता है, वो ग्रेटेस्ट होता है.
जैसे ही हम उसमें कुछ सल्यूट डालेंगे, जैसे हमने वाटर के, सपोज हमारे पास एक प्योर सॉल्वेंट है, उसका वाटर पोटेंशियल मैक्सिमम होगा। जैसे ही उसमें हमने कोई सॉल्ट ऐड कर दिया या शुगर ऐड कर दिया तो उसका वाटर पोटेंशियल जो है वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा, बिकॉज उसमें हमने क्या ऐड कर दिया, कुछ हमने सल्यूट ऐड कर दिया। सो वाटर पोटेंशियल जो होता है, तो सल्यूट पोटेंशियल और प्रेशर पोटेंशियल अभी हम डिस्कस करेंगे। दो कंपोनेंट्स हैं जो कि वाटर पोटेंशियल को डिटरमिन करेंगे। सो स्टूडेंट, आप ये डायग्राम देखो। सो यहाँ पर क्या है, वाटर पोटेंशियल हाई है, यहाँ पे वाटर पोटेंशियल लो है। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। ये बहुत सिंपल बात है। यहाँ पे वाटर पोटेंशियल हमने हाई क्यों लिखा, बिकॉज यहाँ पे अगर आप सल्यूट देखते हो, अगर सल्यूट में पार्टिकल्स आपको काउंट करके बताऊँ तो यहाँ पर सिर्फ 4 हैं, और यहाँ पर अगर सल्यूट पार्टिकल्स आप काउंट करते हो तो अप्रॉक्सीमेटली से 10 to 12 सल्यूट पार्टिकल्स हैं। सो यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल्स ज़्यादा हैं, तो यहाँ पर जो वाटर पोटेंशियल है वो हाई है, इट इज़ हाई हेयर। और यहाँ पर हमने सल्यूट डिजॉल्व कर दिया तो जो वाटर पोटेंशियल है वो क्या हो गया, लो हो गया, राइट। ओके, सो व्हाट इज सल्यूट पोटेंशियल? सो व्हेन सम सल्यूट इज डिजॉल्व्ड इन द प्योर वाटर, तो अगर हम प्योर, अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि अगर हम प्योर वाटर के अंदर कोई सल्यूट डिजॉल्व कर देते हैं तो वाटर पोटेंशियल क्या होता है, वाटर पोटेंशियल डिक्रीज हो जाता है, बिकॉज वाटर पोटेंशियल जो है वो प्योर वाटर का मैक्सिमम होता है। ठीक है, सो सॉल्यूशंस जो हैं उनका वाटर पोटेंशियल लो होगा। नाउ इट इज़ क्लियर टू यू व्हाट इज सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कब बनेगा, जब हमने कोई भी, अगर हम सपोज हम सॉल्वेंट लेते हैं, सपोज दिस इज अ ग्लास ऑफ वाटर, कोई भी हमने सॉल्वेंट लिया, उसके अंदर अगर हमने कोई सॉल्यूट पार्टिकल्स डिसॉल्व कर दिए तो क्या होगा, इसका जो वाटर पोटेंशियल है वो लो हो जाएगा। वाटर पोटेंशियल को हम साई से डिनोट करते हैं, साई डब्ल्यू। सो दिस इज द साइन ऑफ द साई, यू नो दिस, ये साई, so just wait student, yeah, this is psi. So ये जो है psi w जो है student, that is used for water. So pure water psi w, और psi s जो होता है that is used for the solute potential psi, and this is same sign and this is s here, right? Okay, सो अगर हमारे पास फॉर ए सोल्यूशन, अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे हम देखते हैं तो वाटर पोटेंशियल दैट इज साई डब्ल्यू दैट इज इक्वल टू सोल्यूट पोटेंशियल दैट इज साई एस। इफ प्रेशर ग्रेटर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज अप्लाइड, अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से हम ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करते हैं, एक्चुअली प्रेशर क्या है, वॉल प्रेशर होता है, ठीक है। सो जब तो उसमें वाटर, अगर प्योर वाटर में हम प्रेशर ग्रेटर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर अप्लाई करेंगे टू द प्योर वाटर और अ सोल्यूशन, तो वाटर पोटेंशियल जो है वो इंक्रीज हो जाता है, राइट। प्रेशर कैन बी बिल्ड अप इन द प्लांट सिस्टम व्हेन वाटर एंटर्स द प्लांट सेल ड्यू टू डिफ्यूजन। जब डिफ्यूजन होती है, वाटर अंदर जाता है तो प्रेशर जो है वो बिल्डअप हो जाता है अगेंस्ट द सेल वॉल, तो सेल जो है वो बहुत टर्जिड हो जाता है, इससे सेल ब्लास्ट नहीं होता, तो वॉल जो प्रेशर एक्सर्ट कर रही है तो वो सेल जो है उससे टर्जिड हो जाता है, उससे जो प्रेशर पोटेंशियल जो है वो बढ़ जाता है। प्रेशर पोटेंशियल जो है वो ऑलवेज पॉजिटिव। जब कोई भी सॉल्वेंट जो है वो डिफ्यूज़ करके सेल के अंदर जाएगा तो जो प्रेशर बिल्डअप होगा सेल के अंदर, उससे सेल की टर्जिडिटी हो जाएगी। सो इसको हम कहते हैं प्रेशर पोटेंशियल। सो स्टूडेंट, आपको वाटर पोटेंशियल और सल्यूट पोटेंशियल क्लियर हो गया। वाटर पोटेंशियल जो होता है वो प्योर वाटर का जो है वो हाईएस्ट होता है, तो जैसे ही हम उसमें सल्यूट ऐड करते हैं तो जो सल्यूट ऐड करने से वाटर पोटेंशियल जो है वो लो हो जाता है। वाटर पोटेंशियल को हम साई डब्ल्यू से डिनोट करते हैं और सल्यूट पोटेंशियल जो है उसको हम साई एस से यूज करते हैं, दैट इज ऑलवेज नेगेटिव। साई एस जो है दैट इज नेगेटिव। ओके, नेक्स्ट। ओके स्टूडेंट्स, नाउ हम डिफरेंट टाइप के ऑस्मोसिस स्टडी करेंगे, दैट इज वेरी इजी। फर्स्ट इज एक्स ऑस्मोसिस एंड सेकेंड इज एंड ऑस्मोसिस। जब हम अपने सेल को डिफरेंट टाइप के सॉल्यूशंस में ऐड करते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। बिफोर स्टडिंग दिस, लेट्स स्टडी द नेक्स्ट स्लाइड फर्स्ट। सबसे पहले हम ये देखेंगे स्टूडेंट कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, हाइपोटोनिक क्या होता है और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है कि जब एक्सटर्नल सॉल्यूशन जो है सेल के अंदर साइटोप्लाज्म और जो एक्सटर्नल सॉल्यूशन है वो बैलेंस्ड है, ठीक है। इफ द एक्सटर्नल सॉल्यूशन इट बैलेंसेस द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द साइटोप्लाज्म। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक क्या है, जब एक्सटर्नल सॉल्यूशन जो है वो डाइल्यूट है, सेल के अंदर जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ज़्यादा है, बाहर जो एक्सटर्नल सॉल्यूशन है वो जो है वो डाइल्यूट है, उसको हम हाइपोटोनिक बोलेंगे। इससे सेल जो है वो स्वेल हो जाएगा। अभी मैं बताऊंगी आपको कैसे। हाइपरटोनिक होता है कि जब एक्सटर्नल कॉन्सेंट्रेशन जो है वो ज़्यादा है, एक्सटर्नल सॉल्यूशन जो है वो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है एज कम्पेयर टू साइटोप्लाज्म, तो उसमें सेल जो है वो श्रिंकेज शो करेगा।
नाउ स्टडी दिस डायग्राम, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या है, बाहर अगर आप कॉन्सेंट्रेशन देखेंगे तो बाहर कॉन्सेंट्रेशन जो है वो ज़्यादा है, सेल के अंदर आप कॉन्सेंट्रेशन देखते हैं तो लो है, ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। तो क्या होगा, वाटर की मूवमेंट, आप देखो एरोस कहाँ इंडिकेट कर रहे हैं, बाहर की तरफ इंडिकेट करेंगे। तो जब हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो उसमें क्या होगा, वाटर जो है वो मूव आउट करेगा, वाटर मूव्स आउट ऑफ द सेल ड्यू टू द हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, बिकॉज कॉन्सेंट्रेशन जो है वो ज़्यादा है। जब वाटर मूव आउट कर रहा है स्टूडेंट्स, तो इस प्रोसेस को हम एक्स ऑस्मोसिस बोलते हैं, ठीक है। सो दिस इज नोन एज एक्स ऑस्मोसिस। एक्स ऑस्मोसिस कहाँ हो रहा है, इन द हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। सो पहले आप ये देखो, हाइपो में सिचुएशन देखो, तो हाइपो में क्या है कि बाहर जो कॉन्सेंट्रेशन है वो लो है। सो बाहर कॉन्सेंट्रेशन लो है, अंदर कॉन्सेंट्रेशन हाई है। सो एरो कहाँ जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है। सो इसमें क्या हो रहा है, वाटर एंटर्स द सेल ड्यू टू हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, क्योंकि बाहर लो कॉन्सेंट्रेशन है। सो दिस इज नोन एज एंड ऑस्मोसिस। और जब एंड ऑस्मोसिस होगा तो सेल जो है देखो वो स्वेल कर रहा है, फिर से पहले वाले यहाँ पर जो है वाटर मूव हो रहा है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, श्रिंक हो रहा है। तो जब हम उसको सेल स्वेल करेगा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में, और जब हाइपर में डालेंगे तो वो क्या होगा, वो श्रिंक करेगा। हम पिछली स्लाइड पे दोबारा से जाएंगे। सो एक्स ऑस्मोसिस का होता है जब वाटर मूव्स आउट करता है, ठीक है। एक्सोस्मोसिस का होगा व्हेन वाटर मूव्स आउट ऑफ द सेल, एंड व्हाई, बिकॉज ऑफ द हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। सो आप देखो वाटर मूव आउट हो रहा है, और यहाँ पर आप शेप देखते हो, यहाँ पे जो नॉर्मल शेप है उससे ये श्रिंक हो गए हैं। और जो हाइपो है, हाइपो में क्या होता है, एंड ऑस्मोसिस होता है, वाटर जो है वो एंटर करता है बिकॉज ऑफ द हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, और इसमें वो स्वेल हो रहे हैं सेल। और जो आइसो होता है, अभी मैंने बताया था, आइसो में ना तो वाटर मूव इन करेगा ना मूव आउट करेगा, क्योंकि इसमें जो है एक्सटर्नल सॉल्यूशन जो है वो बैलेंस करेगा द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द साइटो। तो इसमें कोई भी जो चेंज है वो शेप में नहीं आएगा। सो दिस इज टोनिसिटी। नेक्स्ट, ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स डिस्कस ब्रीफली द इम्पॉर्टेंस ऑफ ऑस्मोसिस। हमने देखा कि ऑस्मोसिस बहुत एक स्पेशल टाइप का डिफ्यूजन है, और कैसे हमारा एंड ऑस्मोसिस और एक्स ऑस्मोसिस होता है। सो जो वाटर एब्जॉर्प्शन हो रही है फ्रॉम द सॉइल बाय रूट हेयर्स, दिस इज ड्यू टू ऑस्मोसिस। स्टोमेटास का ओपनिंग होता है, स्टोमेटास क्लोज होते हैं। अभी हम फर्दर लेक्चर्स में ट्रांसपिरेशन स्टडी करेंगे, तो मैं आपको और भी बहुत क्लियरली एक्सप्लेन करूँगी कि किस तरह से ऑस्मोसिस इसमें हेल्प कर रहा है। सेल्स टू सेल मूवमेंट हो रही है वाटर की ड्यू टू ऑस्मोसिस। सीड जर्मिनेशन, बिकॉज सीड कैसे जर्मिनेट करेंगे, सीड जो है वो वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, वाटर ऑस्मोसिस, वाटर का मूवमेंट होता है सीड के अंदर, ठीक है। तो सीड जो है वो जर्मिनेट करता है। देन जो रिजिडिटी है प्लांट ऑर्गन्स की, दैट इज ऑल्सो, जो टर्जिडिटी है दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ द एंड ऑस्मोसिस। ये अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। Okay students, now two more topics, that is plasmolysis and deplasmolysis. Let us study कि plasmolysis और deplasmolysis क्या होता है। प्लाज्मोलाइसिस, यहाँ पे आप डायग्राम देख रहे हो। प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है, इट इज़ द रिजल्ट ऑफ मूवमेंट ऑफ वाटर पार्टिकल्स। जब वाटर बाहर मूव कर रहा है सेल से, तो क्या हो रहा है, सेल की ये जो मेम्ब्रेन है वो श्रिंक होनी शुरू हो गई अवे फ्रॉम द सेल वॉल। तो जब सेल का मेम्ब्रेन जो है वो अंदर की तरफ श्रिंक होना शुरू हो गया अवे फ्रॉम द सेल वॉल, व्हेन, जब कब होगा, जब हम इसको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे। जब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे तो क्या होगा, उसका मूवमेंट होगा बाहर की तरफ, आप एरोस देख रहे हो, तो इसको हम कहेंगे प्लाज्मोलाइसिस। सो प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है, जब प्लाज्मोलाइसिस होता है तो प्रोटोप्लाज्म जो है वो श्रिंक होना शुरू हो जाता है, एंड इट पुल्स इट अवे फ्रॉम द सेल वॉल, और एक गैप बन जाता है बिटवीन द सेल वॉल एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और उसको जब प्लाज्मोलाइज्ड सेल जो होता है, ये प्लाज्मोलाइज्ड कब होगा, जब हम उसको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे। सो इसी प्लाज्मोलाइज्ड सेल को अगर हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रख देते हैं फिर से, तो प्रोटोप्लाज्म दोबारा से अपनी ओरिजिनल फॉर्म जो है वो उसमें आ जाता है। दोबारा से अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आएगा तो उसको हम कहेंगे डीप्लाज्मोलाइसिस। सी, स्टडी दिस डायग्राम स्टूडेंट्स। यहाँ पे बहुत ब्यूटीफुली डिपिक्ट किया गया है प्लाज्मोलाइसिस। सो यहाँ पर एक टर्जिड सेल है, देख सकते हैं, सेल के अंदर ये वैक्यूल है। तो इसमें क्या होगा, जब इसको हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो आप ये यहाँ पे ध्यान से देखो कि धीरे धीरे ये जो प्रोटोप्लाज्म है ये श्रिंक होना शुरू हो गया,
ठीक है, प्रोटोप्लाज्म श्रिंक होना शुरू हो गया। तो जब जस्ट स्टार्ट होता है श्रिंक होना, ठीक है, तो उसको हम इंसिपिएंट प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। तो अभी ये पूरा का पूरा जो है उसने श्रिंक नहीं हुआ, तो धीरे धीरे क्या होगा, गैप बनने लग गया बिटवीन द सेल वॉल एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यू कैन सी एक गैप फॉर्मेशन हो गया बिटवीन द सेल वॉल एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो ये जो श्रिंकेज हो रहा है, यहाँ पे आपको कंप्लीटली प्लाज्मोलाइज सेल दिख रहा है, पूरा जो इसका प्रोटोप्लाज्म है, सी स्टूडेंट्स, ये श्रिंक हो चुका है। सो श्रिंकेज ऑफ प्रोटोप्लाज्म फ्रॉम द सेल वॉल इज नोन एज प्लाज्मोलाइसिस। और अभी मैंने आपको बताया कि इसी प्लाज्मोलाइज सेल को अगर दोबारा से आप हाइपोटोनिक सोल्यूशन में डाल दोगे तो क्या होगा, फिर प्रोटोप्लाज्म दोबारा से रीगेन कर लेगा अपना ओरिजिनल फॉर्म, और उस प्रोसेस को हमने बोला था डी प्लाज्मोलाइसिस। ओके, इंपॉर्टेंस ऑफ प्लाज्मोलाइसिस क्या है, इससे हमें प्लाज्मोलाइसिस जो है, इससे एक तो सबसे पहले तो हमें लिविंग नेचर का पता चलता है सेल का, ठीक है, सेमी परमेबल नेचर का पता चलता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेमी परमेबल है, और इससे हम वीड्स को भी किल कर सकते हैं। वीड्स को क्या कर सकते हैं हम, वीड्स के ऊपर कुछ भी हाइपरटोनिक सोल्यूशन जो है वो स्प्रे कर सकते हैं, उससे क्या होगा, वो श्रिंक हो जाएगा और वीड्स जो हैं वो किल हो जाएंगे। और इसी तरह से हमारे जैम्स हैं, जेलीज हैं, मीट है, उसको प्रिजर्व करने के लिए भी हम इस प्रोसेस को यूज़ करते हैं, ठीक है, क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड जो सोल्यूशन होता है उससे प्लाज्मोलाइसिस हो जाएगा, बैक्टीरिया फंजाई जो है वो ग्रो नहीं कर पाएंगे। सो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द प्लाज्मोलाइसिस। ओके स्टूडेंट्स, सो ऑस्मोसिस, आई थिंक ऑस्मोसिस आपको समझ आ गया स्टूडेंट्स। सो ऑस्मोसिस में हमने डिफरेंट टाइप के ऑस्मोसिस देखे, एक्स ऑस्मोसिस देखा, एंड ऑस्मोसिस देखा। देन उसके बाद स्टूडेंट्स हमने देखा कि ऑस्मोसिस जो है उसका क्या सिग्निफिकेंस है, एंड देन व्हाट इज़ वाटर पोटेंशियल हमने स्टडी किया, सल्यूट पोटेंशियल जो है हमने स्टडी किया। देन स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है, दिस इज़ वेरी सिंपल टॉपिक, जिसको हम इम्बिबिशन बोलते हैं। इम्बिबिशन आपने रोज़ अपने घरों में देखते हो कि जब हम कोई भी, जैसे हमने वाइट चना है या ब्लैक चना है, उसको हम अगर सोक करते हैं तो मॉर्निंग में स्टूडेंट आप देखते हो कि उनका जो वॉल्यूम है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। सो उनका वॉल्यूम जो है वो चेंज हो जाता है, बिकॉज इम्बिबिशन में क्या होता है कि वाटर मॉलिक्यूल्स जो होता है वो एब्जॉर्ब हो जाता है और वो इमोबलाइज हो जाता है सरफेस के ऊपर। सो इम्बिबिशन क्या होती है, वो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर है या एनी अदर लिक्विड है विदाउट फॉर्मिंग द सोल्यूशन। सो ये स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन है जब वाटर एब्जॉर्ब हो गया बाय सॉलिड्स या कोलॉइड्स, इंक्रीजिंग कॉजिंग देम टू इनॉर्मसली इंक्रीज इन वॉल्यूम। सो आप यहाँ पे टेस्ट ट्यूब देख सकते हो, तो जैसे हमने इसमें वाटर डाला तो आप वॉल्यूम देख सकते हो कि किस तरह से वॉल्यूम जो है वो यहाँ पे पूरा वॉल्यूम इसने ऑक्यूपाई कर लिया। सो जैसे कोई सीड्स हैं या ड्राई वुड तो हैं, तो वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं और उससे उसका जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाता है। प्रेशर दैट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द स्वेलिंग ऑफ द वुड, आप विंटर्स में मानसून्स में आप देखते हो कि जो आपके वुडन डोर्स होते हैं स्टूडेंट्स, वो बंद नहीं होते या वो जैम हो जाते हैं, जैमिंग ऑफ द डोर होता है, क्योंकि वुड क्या होता है, वुड में सेल्यूलोज होता है। सेल्यूलोज क्या करती है, वो वाटर को इम्बाइब कर लेती है, ठीक है। सो वाटर जो होता है इम्बाइब हो जाता है। सो वाटर जो इम्बाइब होता है दैट इज हेल्ड इन बिटवीन एंड ओवर द सरफेस ऑफ पार्टिकल्स, इस प्रोसेस को हम एड्जॉर्प्शन बोलते हैं। ओके, सो यहाँ पर आप देख सकते हो, अभी मैंने आपको बताया था कि जैसे हम अगर सीड्स डालते हैं तो ये स्वोलन हो जाते हैं। इफ़ इट वर नॉट फॉर द प्रेशर ड्यू टू इम्बाइबेशन, सीडलिंग वुड नॉट बी, सीडलिंग्स कैसे जर्मिनेट कर रही है, तो वाटर को वो इम्बाइब करते हैं। सो ड्राई सीड्स जो होते हैं, जब ड्राई सीड्स वाटर के कॉन्टैक्ट में आते हैं तो वो क्या करते हैं, रैपिड मूवमेंट होती है वाटर की टू द सरफेस ऑफ द ड्राई सीड्स, ठीक है। सो जब ड्राई सीड्स की ड्राई सीड्स जो होते हैं, दे बियर अ नेगेटिव वाटर पोटेंशियल है, तो जब इनको हम वाटर के कांटेक्ट में लेके आते हैं तो उसमें क्या होता है, एक वाटर पोटेंशियल डेवलप हो जाता है, उससे क्या होती है, रैपिड मूवमेंट ऑफ वाटर होती है टू द सरफेस ऑफ द ड्राई सीड्स। तो ड्राई सीड्स के ऊपर जब वाटर मूवमेंट होगी तो इसको हम क्या कहेंगे, इम्बिबिशन कहेंगे। तो उससे क्या होता है कि सीड जो है वो जर्मिनेट करेंगे, राइट। सो इम्बिबिशन के मैंने अभी आपको बताया कि इम्बिबिशन के टाइम क्या होता है कि वाटर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं they get tightly absorbed and they become immobilized, वो अपनी काइनेटिक एनर्जी जो है वो खो देते हैं इन दी फॉर्म ऑफ हीट। आपने स्टूडेंट देखा है, जब हम अपना चपातीस बनाने के लिए जो हमारा आटा होता है, जब हम अपना नीडिंग करते हैं व्हीट फ्लोर को, तो उसमें से हमको हीट फील होता है। सो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ नीडिंग ऑफ द व्हीट फ्लोर, ठीक है, क्योंकि स्टार्च और सेल्यूलोज जो होते हैं वो इम्बाइब करते हैं वाटर को, राइट। सो दैट इज इम्बिबेशन।
सो ये देख सकते हो यहाँ पर जैसे आपने सीड दिखाया तो सीड के ऊपर स्टूडेंट्स ये क्या है, एफिनिटी है उसके पास, स्पेशल एक एफिनिटी है टू इम्बाइब द लिक्विड. सो फॉर एनी सब्सटेंस टू इम्बाइब एनी लिक्विड, एफिनिटी बिटवीन द एब्जॉर्बेंट एंड द लिक्विड, ये उसकी जो है वो रिक्वायरमेंट है, राइट. सो टू इम्बाइब अ लिक्विड, कोई भी सॉलिड जो है, टू इम्बाइब अ लिक्विड अ सॉलिड मस्ट हैव एफिनिटी चाहिए उसके लिए लिक्विड की, एंड वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑल्सो बिटवीन द सॉलिड एंड द liquid, right? So in this is known as imbibition. Now let's study briefly the significance of imbibition. Imbibition क्या है, बहुत important role play कर रहा है imbibition का. First is the absorption of water by the roots of the higher plants. So जो है water absorb करते हैं, even germinating seed जो है वो water absorb करते हैं by the process of imbibition. So it is very essential for the dry seeds. Before they start germination, as a result of imbibition से क्या होता है, उसमें एक pressure develop हो जाता है. So उसको हम imbibition pressure बोलते हैं, right? So germination, even जो jamming of wood doors मैंने आपको बताया था, wooden doors हैं, windows हैं, rainy season के अंदर जो है वो jam हो जाते हैं, that is also due to imbibition. Okay students, so it plays a very important role in the life of the plant. Okay. So that's all students. Thank you very much for watching today's lecture. Today we covered two very important topics, that is osmosis, which is a special type of diffusion and which is taking place through a semi-permeable membrane, and then we studied about imbibition. Okay. Thanks for watching. Have a nice day.